অপারেশন সিন্দুরের পর পেহেলগামে জিহাদি হামলার বদলা নেওয়ায় দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে দেশবাসী। সবকটি রাজনৈতিক দলও সেনার এই অসীম বীরত্বকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু এসবের মাঝেও সেনাকে ছোট দেখানোর দুঃসাহসও করেছেন বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা। সম্প্রতি দেশের একজন উপমুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক একেবারে তুঙ্গে উঠেছে। অপারেশন সিন্দুর নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, ভারতীয় সেনা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে মাথা ঠেকিয়েছে। আর এই মন্তব্য ভাইরাল হতেই স্বভাবতই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। দেশের সেনাদের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করে কার্যত দেশকে অসম্মান করেছেন ওই উপমুখ্যমন্ত্রী, এই অভিযোগও উঠেছে। আমরা যার কথা বলছি তিনি মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জগদীশ দেবরা। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি তার ভাষণে বলেন, আজ পুরো দেশের সেনা জওয়ান প্রধানমন্ত্রীর পায়ে নতজানু হয়েছেন। তিনি যে জবাব দিয়েছেন তার যতই প্রশংসা করো কম হবে। তিনি বলেছেন যে মধ্যপ্রদেশে কি বলেছেন ঠিক মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী, শুনব। जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। এদিকে দেশের একটি রাজ্যের একজন উপমুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথায় বিতর্ক যাকে বলে একেবারে তুঙ্গে উঠেছে। তার এই মন্তব্য দেশের সেনার মনোবলেও আঘাত করবে বলেই অভিযোগ উঠেছে। এদিকে বিতর্ক শুরু হতেই নিজের মন্তব্য নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের পক্ষে সাফাইও দিয়েছেন জগদীশ দেবরা। তার মতে তার মন্তব্যকে নিয়ে বিকৃত করা হচ্ছে, এটা ভুল। আমি বলেছিলাম অপারেশন সিন্দুর দেশের সেনা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে দেশের জনতা ভারতীয় সেনার পায়ে নতমস্তক, এটা আমি বলেছি। আমার এটাই ভাবনা। আমার মন্তব্যকে বিকৃত করে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা ষড়যন্ত্র, এটা অন্যায়। আমার ভাবনাকেও আঘাত করা হয়েছে। আমিও দেশের সেনাকে সম্মান করি। দেশের সেনাকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য কেন করব, কি বলছেন তিনি, শুনব। मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है। और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा। ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है क्या आप मानते हैं? किस तरह ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है। और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है? विजय शाह जी ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहें? अब वो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा।
অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগে বিজেপিরই আরেক নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। তার নামে এফআইআর পর্যন্ত করা হয়েছিল। আমরা বলছি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বিজয় শাহের কথা। তিনি কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন, যা বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই কদিন যিনি পাকিস্তানে জিহাদি আস্তানায় একেবারে ভারতের অপারেশন সিন্দুরের সময় মিডিয়া ব্রিফিংয়ের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন, তাকে এবার পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের বোন বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি। তার এই মন্তব্য রীতিমতো ভাইরাল হয় এবং লজ্জার ঝড় ওঠে। কি বলেছিলেন শুনবো। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का त्योहार तक बदला। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।